मैंने इस वीडियो में एक चैप्टर है ग्राफ और 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है उसको कवर किया है। देखिए कुछ बुक्स में इसका जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, ठीक है। कुछ बुक्स में नाम है इसका ग्राफ और सब में कंटेंट सेम है। तो इस वीडियो में बेसिकली करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको सोल्व करा है। फिर बात करिए कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर ग्राफ एंड लाइन ग्राफ, ये सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, तो इसके डिफरेंस को मैंने बताया है। और फिर कैसे लीनियर ग्राफ को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो बात करी है। और लास्ट में फिर वापस से मैंने एक्सरसाइज सेकंड को, जो कि ग्राफ की एक्सरसाइज है, वो कवर किया है। तो लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होते क्या है और ये कहाँ से आए। Now, before I start the chapter, let me have some general talk. If I ask you what is how to find position on a number line और position in a plane, plane जो होता है ना वो मैं मीनिंग बताता हूँ। प्लेन फ्लैट सरफेस को कहते हैं। जो हम रूम का जो फ्लोर है वो प्लेन सरफेस होता है। पहले नंबर लाइन की बात करते हैं। देखिए देयर आर 4 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए नंबर लाइन, राइट। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिंकी, तो यू विल सिंपली आंसर द पिंकी इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये हमारा जो है लेफ्ट होगा, हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो लेफ्ट माना जाता है और ये राइट। तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन सेकंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इज सफिशिएंट to tell the exact position of Pinky. But what about in a case of class in a plane surface? Where there is a class, if I ask you what is the position of Rajat, will this statement will be complete? The answer is no. Now to tell exact position of Rajat, we need one vertical line and one horizontal line. If I say what about vertical line, मेरा जो मीनिंग है वर्टिकल लाइन का वो है कॉलम। द वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रजत? पोजीशन ऑफ रजत इज इन द सेकंड रो। सो रजत पोजीशन इज रो बी and the column is second column. Where these two meet, that is the exact position of Rajat. So from this one thing is clear कि to tell address of any point in plane we need two information, one row position and second is column position. Let me take few more example to make it clear. ये आप day to day life में बहुत देखते हैं। देखिए now the question is, if I talk about next is seating arrangement in aeroplane. I hope आपने टिकट पे देखा होगा, और seating arrangement in cinema hall. If I talk about what is the seating arrangement, what is the address of this seat in cinema hall? So this is in the row C. So I will write C first, and this is in the column 3. So I will write C3. So C3 is the address of the seat, and it is definitely आपने printed होता है आपका टिकट पे। Same in case of aeroplane seating arrangement. Now we are having the vertical and we are having the horizontal one. So by combining vertical and horizontal line, we can tell exact any seat address which we have done in cinema hall. So this we are doing, but this is a chapter in our syllabus. Let me take two more example all. So here I hope you are all agree with me कि भाई if this is a chess and somebody ask me chess जो what is the address of this अगर ये move है तो what is the address? So first I will refer to the horizontal line one, mean this is a D, right? And then I will go to the vertical line and this is 5. So D5 is the address of this cell. If I talk about what is the address of this cell, if I let me talk about now in this case, what I will do, I will refer to the column is C. This is the C, and what is row is 6. So this is the way to write the address. Same in mobile phone. If I ask you what is the Facebook address, we touch na. So Facebook address will be here. What is the
column here, column is 1, and what is a row here? D. So I can write D1. So from these 4 examples, it is clear that we need 2 information to tell exact address of any object on in plane surface. 2 object mean कि एक आपको रो चाहिए, एक आपको कॉलम चाहिए. Now these 2 object or 2 information in mass is known as x-axis और y-axis. Let me talk about more about this. देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट? और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस बोलते हैं. एंड वेयर दीज आर द परपेंडिकुलर लाइन, प्लीज मेक श्योर ये 90 डिग्री एंगल है. एंड वेयर दीज 2 लाइन मीट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. और ये जो ओरिजिन है इसके जो वर्टेक्स है ना कोऑर्डिनेट वो 0/0 होता है. अब मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा. कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेट होता है एक पॉइंट का एड्रेस और वो ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स और वाई की वैल्यू. एक जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक पेयर होता है जिसमें एक्स की वैल्यू पहले आती है. प्लीज मेक श्योर एक्स हमेशा पहले आएगा, देन आई विल राइट वाई वैल्यू. तो एक्स और वाई को कंबाइन करके जो बनता है वो एक कोऑर्डिनेट बनता है. अब एक्स को सेपरेटली हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई को जो अलग है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट. देखिए डिफरेंस है कोऑर्डिनेट में और ऑर्डिनेट में डिफरेंस है. इन क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट से इज द सेम थिंग और डिफरेंट. नो, इट इज डिफरेंट. वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं. एग्जाम्पल से समझाता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं भी ए का कोऑर्डिनेट बताइए तो एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछा है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे. एक्स एक्सिस की तरफ गए तो इट इज 4, तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया. फिर हम जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ. वाई एक्सिस की तरफ गए तो वैल्यू इज 3, तो ये 3 वैल्यू आ गई. तो यहां पे x की वैल्यू जो है ना अब्सिसा वो है 4 और जो y की वैल्यू है ऑर्डिनेट वो है 3. तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बनता है. एग्री? एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में. क्वेश्चन आया था राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट. तो मैक्सिमम स्टूडेंट सेड कि सर ऑर्डिनेट सुना ही नहीं, कोऑर्डिनेट सुना था. बट आंसर इसका क्या है? अब्सिसा अगर आपसे पूछा है तो यहां पे अब्सिसा 7 है और आपसे ऑर्डिनेट अगर पूछा है तो ऑर्डिनेट यहां पे हो जाएगा 5. आई होप. और इन दोनों को कंबाइन में कर देता हूं उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. और ये आपको याद में रखना है कि भाई एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं फिर वाई. ठीक है ना? वन मोर थिंग, जनरली बच्चे सोचते हैं 7/5 7,5 और 5,7 सेम होते हैं. आंसर बिल्कुल नहीं, सेम नहीं होते हैं. एक और लेता हूं मैं. देखिए मैंने अभी तक आपको बताया है कि भाई जो ओरिजिन है उसकी जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट की वो 0,0 होती है. और ये नंबर लाइन की तरह ही तो है एक जो एक्स एक्सिस है, यानी कि नंबर लाइन पे राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आती है और यहां आप जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है. सिमिलरली वर्टिकल नंबर लाइन में ऊपर आप जाओगे एक्स एक्सिस की तरफ तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है और नीचे जब जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आती है. अब जो बार बार मैं एक्सिस वर्ड यूज कर रहा हूं तो जो प्लूरल है ना एक्सिस का वो AXES होता है. जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये सेम है कि डिफरेंट है. दिस इज द प्लूरल. और आपने नोट किया दीज 2 एक्सिस डिवाइड ए प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से 4 पार्ट है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है. 4 में 2 जो लाइनें हैं वो किसी भी प्लेन सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं. अब इन चारों पार्ट का नेमिंग पढ़ेंगे हम. ये होते क्या हैं? इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं. तो मैं पहले क्वाड्रेंट समझाता हूं, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है. सो लेट मी स्टार्ट. सो अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कि 2 लाइंस व्हेन डिवाइड ए प्लेन सरफेस इनटू 4 पार्ट. ये क्वाड्रेंट 1 है. क्वाड्रेंट 1 जो है वो यहां से शुरू होता है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसके पॉजिटिव वैल्यू और ये जो वाई एक्सिस है इस वैल्यू तक, ये क्वाड्रेंट 1 है. फिर यहां से लेके और यहां तक ये जो एरिया है ये क्वाड्रेंट 2 कहलाता है, राइट? और क्वाड्रेंट 3 जो है ये कहलाता है, ये एक्स डैश ले लेता हूं. अगर ये एक्स है तो ये एक्स डैश ले लेता हूं, ये वाई है तो ये वाई डैश ले लेता हूं. तो एक्स डैश और वाई डैश के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट 3. और वाई डैश और एक्स एक्सिस के यानी कि एक्स के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं. अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है ना उसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव. देखिए हम करके देखते हैं. a का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं. a को सबसे पहले मैं x की तरफ गया
तो मैंने देखा 7 है, फिर ए को मैंने देखा 3 की तरफ, वाई की तरफ गया तो 3। ये एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 3 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपने नोट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। बी में लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू रखने के लिए गया तो ये -5 आई, यहां पे मैंने -5 लिखा। फिर मैं वाई एक्सिस की तरफ गया तो वाई एक्सिस की पे वैल्यू आई -2। तो आपने नोट किया मैंने क्या लिखा है कि x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है और y की वैल्यू हमेशा यहां पे पॉजिटिव आएगी। तो ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप है एक्स की एक्सिस की तरफ मैं गया, एक्स की वैल्यू मैंने ढूंढी तो एक्स की वैल्यू -4 है, मैंने यहां पे -4 लिखा। फिर मैंने वाई एक्सिस की तरफ करा तो वाई एक्सिस की तरफ -5। देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, तो एनी कोऑर्डिनेट जिसके दोनों नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो डी की हम ऊपर गए तो डी की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ गए तो 4 है, और डी की वाई एक्सिस की तरफ गए तो वाई एक्सिस की तरफ -3 है। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। फिर जनरली पूछते हैं कि सर अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो वो क्या क्वाड्रेंट में होगा? नहीं, वो हम कहेंगे क्वाड्रेंट नहीं, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वाई पे। फिर इनका कोऑर्डिनेट, तो आप ये बताइए एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2 है। फिर वाई बताइए, तो वाई के एक्सिस की तरफ गए तो वाई की वैल्यू तो यहां 0 है, तो ये 2,0 हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भाई वाई एक्सिस पे वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल यहां इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है मैं कहां पे जाऊंगा? एक्स की तरफ गया, तो मैंने एक्स की तरफ जाके देखा तो एक्स की वैल्यू तो 0 आई, तो ये मैंने 0 लिख दिया। फिर मैंने वाई की वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू 6 आई। सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर कि एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो वाई की वैल्यू 0 आती है, और एक्स वाई एक्सिस पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 आती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो मैंने यहां तक क्या बताया? मैंने क्वाड्रेंट बताया। क्या क्वाड्रेंट है? फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, ये मैंने बताया, दोनों वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स होगा पॉजिटिव और वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जनरली पूछा कैसे जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि टेल कि भाई -8 और -9 कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? तो आप झट से कहोगे सर दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसको और इलाबरेट करने के लिए। ओके, अब 18.1 एक्सरसाइज करते हैं। आई होप कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है भाई प्लॉट करना है पॉइंट्स, नंबर लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं ये। तो हमें एक नंबर, कई बच्चे कहते हैं सर हर एक को अलग अलग नंबर लाइन पे करें, तो आंसर नहीं, एक नंबर लाइन पे करना है। तो लीजिए भैया नंबर लाइन जो है वो मैं बना लेता हूं। नंबर लाइन की खासियत ये होती है कि उसके दोनों तरफ एरो आपको शो करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है कि भाई आपको ना इक्वल डिस्टेंस पे, देखिए मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस पे आप मार्किंग करनी है आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। स्केल लोगे आप, और स्केल लेने के बाद आपको इक्वल मार्किंग करनी है। ये मैंने 0 मान लिया, ठीक है। राइट साइड में मेरा हो जाएगा प्लस का 1, +1 नहीं लिखते, तो यहां पे 1 के बाद 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहां पे 3, ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। 4, राइट, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। देखिए हमारा +8 ही मैक्सिमम। और जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो यहां पे माइनस आएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1। ये भी इक्वल डिस्टेंस भी होंगे, -2, -3, -4, -5, राइट। अब देखिए ए कह रहा है -5 हाईएस्ट है, तो एक ज्यादा ले लीजिए, ये -6 ले लीजिए मैंने। ए कह रहा है -3, तो -3 जो जहां पे है ना, इसको मैं कैसे करूंगा? ये -3 है, इसको मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दूंगा। सो ये मेरा फर्स्ट जो नंबर लाइन है ना, उसका ए रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर बी 0 है, तो देखिए 0 ये रहा,
तो ये 0 है, इसको भी मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया, और ये जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है वो बी की होगी। आई होप आप सी करते हैं तो सी समझ में आ जाएगा। देखिए सी जो है प्लस का 7 है, तो इसको भी रेक्टेंगल बॉक्स में डाल देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 7 वाली, ये मेरा सी। डी -1 है, तो ये डी जो है ये -1 होगी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये हो जाएगी -1, यानी कि डी होगी। फिर ये E3 है, तो ये देखिए E जो है वो यानी कि प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा E की रिप्रेजेंटेशन। ये -5 है, तो -5 डेफिनेटली लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट आंसर हो गया है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? आई होप आप नंबर लाइन का ध्यान रखोगे, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए आपको। और आई होप आप नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हम पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है राइट द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये होता क्या है। देखिए ये एक जो पूरा मिला के ना x, y है, ये x, y एक कोऑर्डिनेट कहलाता है। मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट से अलग होता है। अक्सर बच्चे कोऑर्डिनेट उसमें कंफ्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेट होते हैं ना, और ये जो x की वैल्यू होती है ना, इस x को एब्सिसा बोलते हैं। ये मैंने समझाया था, आई होप आपको थोड़ा सा रिकैप हुआ होगा। और ये जो y की वैल्यू है ना, इसको ऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला दूं मैं, यानी कि x, y को दोनों को मिला देता हूं, तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो बोलते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस पता लग गया तो शुरू करते हैं। यहां पे पूछ रहे एब्सिसा लिखिए और ऑर्डिनेट लिखिए। तो देखिए एब्सिसा होता है x की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, और y की वैल्यू ऑर्डिनेट है -2 लिख दिया। क्लियर? यहां पे x की वैल्यू यानी कि एब्सिसा 6 होगी, ये -3 होगी। यहां पे एब्सिसा जो है -3 हो गया, और जो 10 है वो ऑर्डिनेट हो गया। मेरा मानना ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 हो गया, और यहां पे 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये y की हो जाएगी, ये 0 हो गया। यहां पे 3 और -5। ये सबसे इजी कहूंगा मैं इस एक्सरसाइज में। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। मजेदार तो ये क्वेश्चन है, देखिए भाई मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर एग्जाम में पूछता हूं। कहता है प्लॉट करना है हमें ग्राफ पेपर पे। तो मैंने पहले ग्राफ पेपर को ही ले लिया है। जो वर्टिकल लाइन है ना, उसको कहते हैं वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये मैंने x लिया है, तो देखिए दोनों तरफ एरो लगाना है। इसको x डैश ले लिया मैंने, ठीक है। इसको अगर मैं y ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं y डैश, और ये दोनों जब लाइन परपेंडिकुलर लाइन करती है ना, ये ओरिजिन 0 होता है। 0 के राइट साइड में ये जो पॉइंट है ना, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली y की जो वैल्यू है ना, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। प्लस के लिए साइन नहीं लगाते प्लस, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। क्लियर? अब हमें कह रहा है ये पॉइंट्स प्लॉट करिए। ए वाला -6,6 कह रहा है, x की वैल्यू है, ये ध्यान में रखना आप, x हमेशा पहले आता है। तो x -6 ये रहा, राइट, और y की वैल्यू 6 ये रही। यानी कि मैं तो अगर आपके हाथ में स्केल है तो -1 और ऊपर है 6, तो डॉटेड लाइन ले लीजिए, ये एक अच्छा तरीका है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैं ये -1 और 6 हो गया, राइट, ये ले लिया मैंने ए पॉइंट। अब बी की बात करते हैं। 7 और पॉजिटिव है, देखिए यहां पे पॉजिटिव 7 है और -2, तो पॉजिटिव 7 x की वैल्यू ये रही, और -2 ये रही, यानी कि 7 पॉजिटिव है और y की वैल्यू -2 है। तो डॉटेड लाइन से जब दोनों जहां पे मीट करते हैं ना, ये पॉइंट मैंने मार्क करा 7 और -2, और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब सी की बात करते हैं। -4 दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो भैया इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -4। ये जब दोनों जहां मीट करेंगे ना, वो मीटिंग पॉइंट कहलाएगा आपका सी वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि -4 और -4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में इंक चेंज लेके समझा देता हूं आपको। देखिए ये पूछ रहा है D3, -2, तो x की वैल्यू तो कितनी है, 3 है ना, तो ये प्लस का 3 है, और y -2 ही है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये D है 3, -2, ठीक है। अब ये देखो मजेदार तो ये है, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते थे, मैंने पूछा। तो ये पॉइंट जो है ना, ये ओरिजिन कहलाता है। ये ओरिजिन जो है ये 0,0 है, ध्यान में रखना, जिसके ऊपर मैं ये कर रहा हूं इसको मैंने ई माना है, राइट।
फिर कह रहा है -3 और 5, तो -3 तो x की वैल्यू है, ये रही, ठीक है, ये ले लिए, मैंने ले लिया -3, और 5 पॉजिटिव है, ये ले लिया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसमें जहां पे इसको मैं मार्क एरो करके शो कर देता हूं, ये F पॉइंट है, इसमें -3 और 5 है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन प्लॉट करी है और ये अक्सर 4 से 5 नंबर में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज समझाता हूं। ये कहता है कि हमें प्लॉट नहीं करना, हमें ये बताना है कौन से क्वाड्रेंट हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की क्या खासियत होती है, एक नेगेटिव होती है और वाई जो है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। आई होप आपको मैंने रिकैप करा है। अब नेम लिखना है। देखिए दोनों पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू, तो वो तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, यहां पे आपने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने लिख दिया पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरा मानना आपको समझ में आया। दोनों नेगेटिव तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे मैंने लिख दिया कि ये नंबर आप प्लॉट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो लीजिए इसका भी मैंने आंसर लिख दिया। फिर बात करते हैं x की वैल्यू नेगेटिव, y पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव और y पॉजिटिव। आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो लीजिए भैया ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं -x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वही है देखो, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो लीजिए मैंने इसको भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख दिया। x पॉजिटिव और y -4 है, तो x पॉजिटिव तो भैया यहां पे आता है और y की वैल्यू माइनस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया नंबर 4। तो यहां पे मैंने लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा मानना है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पे भी देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये जो f वाला भी है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन देख के बताया है कि फॉलोइंग जो गिवन पॉइंट्स है वो कोऑर्डिनेट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा वेग है, हल्का सा, इट्स नॉट क्लियर। फोटो क्लिक करी हुई है। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पी पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। कोऑर्डिनेट में x, y होता है, याद दिलाता हूं आपको। x के लिए x की तरफ, x एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। जब मैंने x एक्सिस की तरफ गया तो यहां पे मुझे x की वैल्यू 3 आया। फिर मैंने y की एक्सिस की तरफ चलना शुरू करा तो y की वैल्यू 4 आया, तो 3,4 हो गया, p हो गया। फिर q की बात करते हैं। देखिए q यहां पे ये रहा। सबसे पहले मैंने x की तरफ जाना शुरू किया तो x की तरफ देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर मैंने y की तरफ जाना शुरू करा तो y की वैल्यू अगर आप ध्यान दोगे तो -3 है, तो लीजिए मैंने -3 लिख दिया। q भी हो गया। r की बात करते हैं। देखिए r ये रहा पॉइंट। सबसे पहले मैंने x की तरफ जाना शुरू करा, तो जब x की तरफ जाना शुरू करा तो मैंने देखा कि भाई ये x एक्सिस पे -6 पे जाके मिलता है, राइट। फिर मैंने देखा y एक्सिस की तरफ जाता है, y एक्सिस पे जब जाके देखते हैं तो y एक्सिस पे भी -5 है, तो मैं नीचे लिख देता हूं -6 और -5। ये ऑर्डर पेयर है ना, वो लिख देता हूं और इसकी जरूरत नहीं हम अकेला लिखने की। मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने r भी बता दिया। s देखता हूं लास्ट वाला। देखिए s अकेला ऐसा है जो x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये तो साफ दिख रहा है, -4 वैल्यू है। लेकिन y की वैल्यू आप y की तरफ जाते हैं तो 0 है। वैसे आपको पता होगा कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा s, राइट। तो मेरा मानना है ये भी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता भाई हमें प्लॉट करना है, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन। ये जो x और y एक्सिस की बनाते हैं ना, ये जो y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। कहता भाई ये पॉइंट्स प्लेन प्लॉट करो और फिर हमें ऑब्जर्वेशन के लिए पूछ रहा है। पहले प्लॉट कर दे। देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 ये रही, ये y की वैल्यू 0, भाई इस पे होती है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर कहता है x की वैल्यू -5, यहां पे मैं लिख दूं तो ठीक रहूं,
सॉरी माइनस क्या, इसको 3 कोमा पॉजिटिव ही है, तो लीजिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। आपको भी पेंसिल से ही ड्रॉ करना है जिससे कि इरेज करने में ये 3,0 हो गया। दूसरा पॉइंट है -5,0। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 है, ये लीजिए मैंने, और 0 हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। फिर है 6,0, तो ये 6 है एक्स की वैल्यू, और वाई की, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है -9,0, तो -9 यहां पे है, ठीक है, और 0। अब ये हमने प्लॉट तो कर दिए, कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए यहां पे जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, चारों के चारों जो पॉइंट्स है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यहां पे मैं आंसर लिखूंगा कि ऑल पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। सो मेरा मानना आपको ये समझ में आया होगा। सो लीजिए नाउ एक्सरसाइज ओवर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। ओके अब 18.2 एक्सरसाइज के ना कुछ नोट्स कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं ना एक इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ, ये अक्सर बच्चे पूछते हैं और क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए लाइन ग्राफ होता है कि विच डिस्प्लेस डेटा वो कंटिन्यूसली चेंज हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो लाइन ग्राफ बनेगी। सर फिर लीनियर क्या होगा, कहते हैं विच इज ए होल अनब्रोकन लाइन, जिसमें अनब्रोकन लाइन बने ना वो लीनियर ग्राफ होगा। सबसे बढ़िया होता है पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये पिक्टोरियल फॉर्म देखिए, ये जो लाइन है ना ये लाइन शो कर रही है आपको लीनियर ग्राफ, यानी कि इसके ये आपको बता रही है ये लीनियर ग्राफ है, अनब्रोकन लाइन है, ठीक है। और नीचे वाला जो ग्राफ है ना इस वाले में ये ग्राफ आपको शो कर रहा है लाइन ग्राफ। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि लीनियर और लाइन में क्या फर्क है। लीनियर में अनब्रोकन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, देखिए आप नोट करेंगे तो राइट। और इसमें आप देखिए बेंड हो जाता है, इंक्रीज तो ये भी कर रहा है बट ये आपने नोट करा उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं कर रहा। तो इस स्लाइड में मुझे बताना है डिफरेंस कि भाई लीनियर ग्राफ में क्या फर्क होता है और लाइन ग्राफ में फर्क क्या होता है। तो आपको इतना याद रखें लीनियर में जो लाइन है ना वो अनब्रोकन होती है, ये लीनियर ग्राफ ऐसा बनता है, और जो लाइन ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा। बस इसमें एक ही है कि इसमें प्रोपोर्शन नहीं होता, इंक्रीज जो होता तो है लेकिन उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होता। क्लियर हो गया। अब बात होती है सर लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ बनते कैसे वो तो बताइए। तो देखिए अब मैं बताता हूं हाउ टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। इसका लीनियर क्यों बनेगा भाई, आपको पता है लीनियर इक्वेशन मैंने बताई थी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, तो ये तो लीनियर ही है। देखिए किसी लाइन को बनाने के लिए आप मानते हो मिनिमम 2 पॉइंट्स ही, हमें 2 पॉइंट्स होगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो लाइन बन जाएगी। भाई 3 पॉइंट्स भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है, बस वो कोलिनियर होनी चाहिए। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करें। तो मुझे एक चीज क्लियर होगी कि भाई मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब कोऑर्डिनेट 2 कैसे मिल सकते हैं, यहां पे अपनी मर्जी से x और y ले सकते हैं। भाई मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 ले लिया, देखिए मैंने लेट लिया ये, तो इस केस में अगर y है ना वहां पे मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 1 y की वैल्यू 2 आ गया। एक काम करते हैं मैं टेबल बना लेता हूं, टेबल है ना ये बड़ी इजी कर देगा हमारा टास्क। तो ये लीजिए आपके लिए टेबल मैंने बना दी। ये टेबल में मैंने आपको हर ग्राफ से पहले ही टेबल बनानी है, इजी रहेगी। कैसे करना है, मैं यहां x ले लेता हूं, यहां y ले लेता हूं। अब मैंने x 1 कंसिडर किया, लीजिए 1 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, ठीक है। फिर अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो x 2 रखा मैंने, तो यहां पे 2 इंटू 2 यहां पे लिख देता हूं। y जो है ना ये 2x है तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। और अगर मैं x की वैल्यू देखो, ये मेरा ग्राफ तो बन सकता है इन दोनों से भी, लेकिन ज्यादा बच्चे गलती नहीं करे इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि मिनिमम 3 पॉइंट तो ले ही लो। अब मैं यहां पे x की वैल्यू अगर 3 ले लेता हूं तो यहां 2 इंटू 3 लूंगा, यानी कि x की वैल्यू 3 लूंगा, तो y जो है वो मेरा बन गया 2 इंटू 3 यानी कि 6।
अब मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट रेडी हो गए, एक है x1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,4 और 3,3। सो 3, ये मैंने देखिए रोंग लिखा है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो आई है 6, तो ये 3,6 हो गया। क्लियर। अब इनको मैं प्लॉट करूंगा तो मुझे उसके बाद प्लॉट करने के बाद लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफ लिया अपनी मर्जी से, और ये मैंने ग्राफ ले लिया। आई होप आपको मैंने, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है वो चीज बताता हूं। भाई आप सबको पता है ये जो है एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाई एक्सिस होता है। तो पहला पॉइंट है एक्स का 1 और y2, x1 और y2। आई थिंक मैं ब्लैक पेन से करता हूं, x तो 1 ये है और y2 ये है, तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट, इसको इस तरह से इनसर्कल कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है 2,4, ये 2 है राइट, और ये 4 है, तो ये मैंने 2,4 जो है यहाँ पे लिख भी सकता हूं मैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, तो ये लिख दिया 1,2। तीसरा पॉइंट है 3,6, तो ये मेरा 3 है। ठीक है, मैं इंक चेंज करके बताता हूं आपको। ये अगर मैं 3 ले लेता हूं तो ये यहां से 6 आ गया, और ये कोमा हो गया, पॉइंट हो गया 3,6। अब इन तीनों डॉट को मैं ज्वाइन कर दूंगा लाइन से, राइट। तो देखिए ये जो लाइन है मैं कैसे बना रहा हूं, ये तीनों जो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो मेरी बन जाएगी, एंड दिस इज अ लाइन। इसको ये जरूरी नहीं है कि भाई आगे, मतलब इनको एक्सीड कर सकती है। लीजिए मैंने एक्सीड कर दी, तो ये जो हमारा ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ हमारा लीनियर ग्राफ कहलाएगा। क्लियर, अनब्रोकन लाइन है। वापिस समझाओ मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मैंने टेबल बनाई, और इस टेबल में 3 पॉइंट्स लिए, 3 कोऑर्डिनेट लिए, देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट किया। सर नेगेटिव भी बन सकता है, बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव बना के देख लिया जाए। अगर x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे मान लीजिए -1 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो वो x की वैल्यू -1, देखिए ये -1 है और ये y की वैल्यू -2 है, तो नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है। तो मैंने अभी क्या शो करा है आपको, पहला है कि अगर मेरे पास ये टेबल रेडी हो जाती है कोऑर्डिनेट्स की, तो ग्राफ बनाना इजी है। क्लियर। चलिए आपको समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं 18.2 के एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है भैया ये, देखिए मैं आपको बताता हूं, वैसे ही क्वेश्चन है। कहता है मेक के टेबल बनाने के लिए कह रहा है, और कहता है फिर उसके लिए ग्राफ बनाइए। तो देखिए सबसे पहले टेबल की बात कर रहा है, तो लीजिए भैया टेबल जो है वो मैं यहाँ पहले ही मैंने बना के रखी हुई है, तो आपको बनानी है, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दी। क्लियर। इसमें मैंने क्या करा, एक जगह पे तो x लिख दिया और एक पे y रख दिया। अब 0.5 है ना, देखिए आप अगर एग्री कर रहे हो 0.5 लिखो या मैं 5/10 करके 1/2 लिखूं, एक ही बात है। तो मैं आपको इजी बनाने के लिए इसको x/2 भी लिख सकता हूं। सर 1/2 कहां से आया भाई, 0.5 तो एक्चुअल में देखा जाए तो 1/2 ही तो होता है, तो 1 मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने क्या करने वाला हूं, अब मैं पॉइंट्स बनाऊंगा। देखिए टोटल मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, मिनिमम 3 ठीक रहते हैं। तो सबसे पहले अगर x मैं 0 ले लूं, यहां पे अगर x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू 0 है, तो y जो है ना वो 0 डिवाइडेड बाई 2 भैया 0 होता है, वो भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 1 लेने पे फ्रैक्शन आ रहा था, तो मैंने एक्चुअल में 2 लेना पहले इजी रखा। 1 रोंग नहीं होगा, लेकिन अगर इंटीजर फॉर्म होंगे तो इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो भैया 2 अगर मैं रखता हूं इस केस में, तो देखिए ये हो जाएगा, या इसकी जगह पे रख दो, बात है x/2 है ना, तो x/2 का मतलब है 2/2, 2/2 अगर मैं रखूंगा तो 1 आ गया, तो y की वैल्यू 1 आया। अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूं, तो यहां पे x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये देखिए y जो है वो हमारा आ जाएगा, x/2 का मतलब है 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 2 आया। तो पहला तो काम था कि टेबल बनाना, बन गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई अगर आपकी टेबल बन गई है तो ग्राफ बनाइए। तो ये ग्राफ पेपर लेना है आपको, और इस ग्राफ पेपर पे आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस मैंने नाम दिया, वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस नाम दिया, और एरो है वो आपको यानी कि दोनों एंड पे एरो बनाना है। क्लियर। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट और ये परपेंडिकुलर लाइन, उसको 0 ओरिजिन माना। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब प्लॉट करते हैं इस पॉइंट्स को।
ये पॉइंट प्लॉट करें तो ऑब्वियसली ओरिजिन जो होता है ना वो भैया x0 और y0 हो गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 2 है और ये y की वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर x की ये दूसरा पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। फिर कह रहा है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे +2 है तो ये रही। ये मेरा यानी कि मैं लिख भी सकता हूं, यानी कि आई कैन राइट 4,2 पॉइंट हो गया, ये मेरा 2,1 पॉइंट हो गया और ये 0,0 पॉइंट हो गया। ओरिजिन तो 0 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब मेरा काम है ना वो है कि इनको ज्वाइन करना, तो ये ज्वाइन करना है आपको स्केल की हेल्प लेके। तो ये मैंने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और आप एक्सीड कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले बताया। तो आगे जरूरी नहीं है कि एंड टू एंड हो। सो दिस इज द कंप्लीट वन और ये हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर है, जिसमें मुझसे पूछा था कि भाई इसका ग्राफ बनाना है। ये जो लाइन है ना ये y इक्वल टू 0.5x का ग्राफ है। क्लियर? तो इसमें मुझे दो चीज कहनी, एक आपको टेबल बना लेना इसलिए इजी हो जाएगा, और दूसरा ग्राफ पे। अब मैंने इसमें नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव भी लेते तो ठीक होता। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको मैं पहले करने के लिए कहूंगा, पहला काम क्या है, बिना कि आपको टेबल जो है ना वो टेबल आपको बना लेनी है। लीजिए भैया मेरी टेबल बन गई और इस टेबल के बाद में मुझे पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए एक जगह x लिख लिया, एक जगह y। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो देखिए आप एग्री कर रहे हो, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी कि 4 आया। x 1 लेने पे y 4 आया। और मैं पता मेरी फेवरेट क्या, मैं 0 लेके करता हूं। x मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 0 यानी कि 0। x 0 लेने पे y भी 0 आ रहा है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो आप पॉजिटिव को ट्राई कीजिए, नेगेटिव रॉन्ग नहीं होता लेकिन पॉजिटिव ज्यादा कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो इस वैल्यू में जहां जहां x है मैं 2 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करने पे 8 आ गया। 3 कोऑर्डिनेट मेरे रेडी हैं, मुझे अब ग्राफ शो करना है। तो ये लीजिए मेरा ग्राफ रेडी है। अब आपने ध्यान दिया कि यहां पे मैंने x और y की वैल्यू ले ली है, तो अब नेक्स्ट लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने x 1 और y 4 लिया, तो x की वैल्यू 1 ये रही, राइट, और y की वैल्यू 4 ये रही, करेक्ट। फिर ये 0 0 की बात कर रहा है, 0 0 तो ओरिजिन होता है जहां पे दोनों की 0 0 होता है। लेकिन ये देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो यहां मैंने 8 अगर आप नोट करो तो x की वैल्यू अब 8 मैंने बनाया नहीं बनाया, तो यहां पे मैं अपना ग्राफ इंक्रीज करके बना भी सकता हूं। और अगर मैं इन दोनों से भी हेल्प करूं तो ये भी प्लॉट हो जाएगा। देखिए मैं अब प्लॉट कर देता हूं, मैं इसको वैसे ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा 7 मान लीजिए बन जाता है और यहां पे 8 बन जाता है। तो यहां पे ये बात बनी कि भैया ये जो क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 8 है, तो ये इस तरह का यहां पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बनेगा। अब तीनों पॉइंट होने पर मुझे जो करना है वो ये करना है कि इनको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? ये देखिए आपको एक ही दिमाग में रखना है कि ये क्रॉस हो जाए, क्रॉस होना बहुत जरूरी है, वो आपको जल्द ये होगा। तो ये आपको मैंने ग्राफ बताया है कैंसर। देखिए ये पॉइंट जो बनेगा ना, ये पॉइंट बना है 2,8, ये पॉइंट बना है 1,4 और ये पॉइंट जो है मेरा है 0,0। y इक्वल टू 4x का ये ग्राफ है। आई होप ये आपको, देखिए ग्राफ में हमेशा स्केल लिखना होता है, तो स्केल x एक्सिस का और y एक्सिस का है ना, वो अगर x एक्सिस का यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्केल एक यूनिट है ना 1 के बराबर लिखते हैं। मैं x एक्सिस पे लिखता हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 1, और यहाँ पे y एक्सिस पे भी आप देखिए 1 2 3 ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट जो है वो 1 के बराबर है। मेरा मानना है आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब पहले तो भाई सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू 6। इसमें x y नहीं है तो a और b वेरिएबल है ना, तो कोई इशू नहीं, यहां पे a और b हम लिख सकते हैं।
अब वैल्यू पुट करते हैं। कहता है कि भाई ए अगर 5 है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ए अगर 5 है, सॉरी बी अगर 5 है, इफ बी इज इक्वल टू 5, तो ए यहां से आ जाएगा 6 इंटू 5 यानी कि 30 आ गया। तो लिख देता हूं मैं, ए मैंने यहां पे रखा 5, तो बी सॉरी बी मैंने यहां रखा 5, तो ए की वैल्यू यहां से आ गया 30। ठीक है, फिर एक दूसरा ले लेते हैं। ये कह रहा है ए की वैल्यू जो है ना वो भैया 6 है, तो ए की वैल्यू 6 है, तो ये जो है ना ए इज इक्वल टू 6b, इसमें इसकी जगह पे मैं 6 रख देता हूं, तो मुझे यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/6 यानी कि 1 आ गया। ये कह रहा है कि a की वैल्यू 6 रखने पर b की वैल्यू 1 आ गया। तीसरा दे ही नहीं रखा इसने, दो तो दे रखे थे, वैल्यू पुट करो भाई। तीसरा मैं 0 ले लेता हूं, अगर मैं इसमें b की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो a भी तो 0 हो जाएगा, 6 इंटू 0, ये मैंने ले लीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करते हैं, अब मैं ले लेता हूं थोड़ा सा इसमें ग्राफ का, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे अलग होगा, क्योंकि मैंने 3 कोऑर्डिनेट तो बना लिए, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, आपकी मर्जी। लेकिन मेरे इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा नंबरिंग का मैंने रॉन्ग कर रखी है, उसको सही करता हूं। क्या है देखिए वापिस से, ए जो है ना वो 30 आ रखा है, और मैं चाहता क्या हूं, ए एक्सिस है ना, यहां पे ए को ले रिप्रेजेंट कर देता हूं और वर्टिकल में बी को कर देता हूं। भाई मैंने देखा जाए तो ए को एक्स की जगह पे लिया है और बी को लिया है यहां पे। आप बोलो सर 30 कैसे आएगा, तो इस पे मैं रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100। देखिए पूरी एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा फिर आपको, यहाँ पे -10, -20, -30, -40, -50, फिर ये आपको 10, 10 का लिया, -80 और -90। फिर यार सर बी में तो जरूरत नहीं है, बी तो वाई एक्सिस है, यहां जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे स्केल पे मेंशन करना पड़ेगा आपको कि भाई एक्स एक्सिस का स्केल अलग है और वाई एक्सिस का स्केल अलग है। 1 यूनिट यहाँ पे जो है ना वो 10 के बराबर होगी, फिर 10, 10 का गैप है, और यहाँ पे 1 यूनिट जो है किसमें, वाई एक्सिस पे, वो 1 के बराबर ही है। कहता है y की वैल्यू 5 और a 30 तो ये रहा, y की वैल्यू 5 ये रहा, यानी कि y का मतलब है मेरा यहाँ पे b, तो पहला पॉइंट मैंने ये लिख लिया। फिर कहता है ये, फिर मुझे सबसे पहले 0 0 लगता है, दोनों का 0 0 है, ये लीजिए दोनों का 0 0। फिर कहता है x जो है वो ले लीजिए 6 और y 1, तो x 6 का मतलब है x की वैल्यू ये है ना 5, मतलब 10 है ना, 10 के बीच में ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया, उसका नेक्स्ट आपके तो 10 ब्लॉक्स होंगे, और बी वाई 1 है, तो y 1 है, तो ये मेरा जो पॉइंट है यहां पे आ जाएगा तीसरे वाला, 1 इधर लिख देता हूं। तीनों पॉइंट अगर मेरे रेडी हो गए हैं तो मुझे क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है लीजिए बताता हूं आपको। ये लाइन मैं यहां ड्रॉ करूंगा इन तीनों को ज्वाइन करते हुए, और मैंने एक आपको लाइन बताई थी कि भैया इनको क्रॉस जरूर कर देना, ये लीजिए मैंने क्रॉस, ध्यान में रखना क्रॉस कर दी मैंने। आप बोलो सर आपने पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करे, मैं वापस से पॉइंट कर देता हूं। ये मैंने पॉइंट क्या लिया था, ये पॉइंट यहां पे लिया था, ये वाला, यानी कि ये है 30,5, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा 6,1, और ये वाला पॉइंट क्या है, वही तो ओरिजिन है 0,0। तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये इसका ग्राफ है a = 6b। मैंने a को x माना है और b को y माना है। मेरा मानना ये भी आपको समझ में आया होगा। तो लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेजोरिटी बच्चे है ना मुझे ये पूछते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन बता दो, ये इंपॉर्टेंट भी है, 9th क्लास में भी है और 8 दोनों में। तो ये समझाता हूं क्या कह रहा है। कहता है भाई हमारे पास एक्स वाई तो है नहीं, ये दे रखा है, तो हमारी जो टेबल बनेगी ना, बड़ी मजेदार टेबल है। देखिए ये टेबल जो बनेगी वो टेबल में एक्स वाई ना आके सी और एफ होगा, तो मैं यहां पे एफ ले लेता हूं और यहां पे सी ले लेता हूं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो निकल के आ रहा है ना, वो ये निकल के आ रहा है कि सर 3 पॉइंट चाहिए। देखो कहता है ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ के लिए मैं 3 पॉइंट ही ढूंढ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई एक जीके का क्वेश्चन था, मेरी मैम पूछती थी बताइए किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। मुझे अभी भी याद है, साइंस टीचर थी मेरी। मैंने बोला कि सर -40 है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे को इस फार्मूले में जब f की वैल्यू मैंने -40 रखा,
तो -40 यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो फार्मूला है ना, C इक्वल टू F/9 F माइनस 32, चेक करते हैं कि बात सही थी कि नहीं। F की जगह पे मैंने -40 रखा और ये -30 एज इट इज है। ये हो गया 5 और माइनस का 72, सॉरी ये नीचे 9 है, 9 1 जा -8, देखिए -40 आया। तो भैया बिल्कुल ठीक है, ये जीके में आया था मैं जब 8th में था। फिर क्या लें, फिर देखिए बहुत सारे वैल्यू है, नहीं समझ में आया तो एफ की वैल्यू 0 ले लीजिए। एफ की वैल्यू 0 लेने पर या सी की वैल्यू 0 ले लीजिए, जो आपको इजी लगता है। अक्सर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वो वैल्यू लीजिए जिसमें आपको दिक्कत ना हो। तो मैं सजेस्ट करता हूं भाई, मैंने सबसे पहले एफ है ना वो 41 ले लिया, 41 लिया, यहां 41 रखूंगा तो सी जो है यहां लिख देता हूं, एफ जो है ना वो मैंने 41 ले लिया, तो सी की वैल्यू यहां पे 5 आ रही है। भाई पुट कर लीजिए, कैसे आ रही है, 41 में से 9 मत लिए 5 लिख देता हूं सीधे। और अगर मैं यहां पे इस केस में देखिए एफ की वैल्यू 32 लिख रहा हूं, एफ मैंने 32 रख दिया, 32 माइनस 30, तो भैया सी की वैल्यू 0 आ गई। ओके, अब हमारे तीनों कोऑर्डिनेट रेडी हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ लेना है वो ग्राफ लिया आपने, और उस ग्राफ पे आपने 2 लाइनें ड्रॉ करी। एक लाइन ले लिया आपने वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और एक लाइन ले लिया आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक चीज क्लियर करता हूं सबसे पहले, वो ये है कि भाई मैं ये जो वैल्यू आई ना इनमें 10 देखो, इसको x ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, किसी को भी ले सकते हैं, इसको y ले लेता हूं, तो ये जो f है ना वो इधर होगा x एक्सिस पे, क्लियर। और ये जो y एक्सिस वाला है ना ये होगा यहां पे c होगा। तो मेरा मानना पहली चीज मैंने डिफाइन कर ली। अब मैं ये जो गैप होते हैं ना आपको एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के, यहां पे 10 लूंगा मैं, तो मैंने ये 10 ले लिया, राइट। यहां पे 20 हो जाएगा मेरा, यहां पे 30 हो जाएगा, यहां पे 40 हो जाएगा, यहां पे 50 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इससे ऊपर तो गया ही नहीं है। अगर आप मैं लेफ्ट में जाता हूं इक्वल डिस्टेंस ग्राफ पे आपको, तो यहां पे माइनस का 10 हो जाएगा, फिर यहां पे -20 हो जाएगा, फिर यहां पे -30 हो जाएगा, फिर यहां पे -40 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। फिर आपने देखा भाई इस y में भी 40 गया है, तो इसमें भी आप ले लीजिए। देखिए ऊपर यहाँ पे प्लस का 10 हो गया, प्लस का 20 हो गया, प्लस का 30 हो गया, प्लस का 40, प्लस का 50। सिमिलरली मैंने इसमें भी लिया है माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस, ये ग्राफ लेना है आपको, ये ध्यान में रखना। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, कहता है -40 और -40, तो भैया ये -40 है इसका यहाँ पे और इसका -40 यहाँ पे है, और इन दोनों को जब मैंने करा तो ये मेरा पहला पॉइंट निकल के आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आपने नोट करा होगा तो इस पे मैं इस पॉइंट को लेता हूं 0 वालों का, कहता है C की वैल्यू 0 है और F32 है, तो F32 35 यहां पे ये वैल्यू जो है ना ये हो जाएगी आपकी F की वैल्यू 30, और आप सबको पता है कि भाई इस एक्सिस पे ना C तो 0 ही है, तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट 0 वाला क्यों लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये आपको देखिए x की वैल्यू 41, राइट, ये 41 हो जाएगी, और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 41 तो मेरा ये है, और y की वैल्यू 5 यहां पे, यानी कि इस सर 5 तो है नहीं भैया, ये अगर 0 है तो मानता हूं ये 5 होगा 0 और 10 के बीच में, तो ये y की वैल्यू 5 है, यानी कि इन तीनों पॉइंट को जो मैं लाइन ज्वाइन करेगी ना वो लाइन मेरी करेक्ट आंसर देगी। तो लीजिए इसको करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट में से लेट मी ज्वाइन, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, और विद दिस बस इसको आप क्रॉस करा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर है। वापिस से बता दो मैंने क्या करा अभी तक, मैंने ये 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करे, कौन कौन से। पहला पॉइंट जो है यहां पे ये लिखा है, ये लिखा है 41,5, ये पॉइंट क्या लिया मैंने 32,0, राइट, और ये पॉइंट क्या लिया है -40, -40। मेरा मानना है आपको ये ग्राफ तो पहले तो ग्राफ रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफ तो मैंने कर दिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, वो देखता हूं मैं कौन कौन से की बात कर रहे हैं। कहता है भैया f अगर 302 है ना तो c निकालो, इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं।
फ्रॉम द ग्राफ कह रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इस फार्मूले को लिखो पहले, तो वो फ्रॉम द ग्राफ क्रॉस चेक हो जाता है। c इक्वल टू एफ बाई 9 और यहां पे मैं लिख देता हूं f माइनस में 32, राइट। तो f की जगह पे मैं 302 लिख दूं तो ये लीजिए ये 5/9 है, तो 5/9 और ये हो जाएगा 302 माइनस में 32, और यहां पे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 270, और 270 को 9 से कट करा, 9 1 जा, यानी कि 150 आया है मेरा C की वैल्यू। कब? जब ये पहला क्या आंसर था, 302 था। अब मैं B की बात करता हूं। B में भी कह रहे हैं, कहते हैं भैया C निकाल, F निकालो। देखिए इस केस में पहले फार्मूला लिख देता हूं। भैया फार्मूला मैंने ये लिखा, इस फार्मूले में मेरे को उल्टा कह रहा है, कहते हैं C की वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 30 है, लो भैया 30 रख दिया, और मुझे निकालना है F माइनस 32 है ना। तो सबसे पहले 9 को वहां पे लेके अगर ट्रांसपोज किया, 30 इंटू 9 270 होता है, और 5 को अंदर में, ये इसको 5 को अंदर नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं, चलिए, राइट। इस 5 को ट्रांसपोज करूंगा तो 270 को मैंने 5 से डिवाइड किया, और यहां पे F माइनस 32 आ गया, तो 5 से कट करा, 5 1 जा 5, 5 जा 25, और 2 बचा 54 आया, तो F माइनस में 32। अब ये माइनस 32 यहां भेजेंगे तो 54 प्लस में 32 मैंने ऐड करा, और ये मेरा आंसर बन गया 86। दोनों का मैंने आंसर बता दिया, ये 86 निकला है और ये 150 निकला है। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। सो लीजिए, अगर इफ यू आर सेइंग कि सर यस वी अंडरस्टूड, तो इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता भैया देखिए, डिपॉजिट वाला होता है ना, किसी ने, ये भी कई बच्चे कहते हैं सर ये भी आप ग्राफ बनवाओगे। भैया इजी है, प्रिंसिपल जो है इसने दे रखा है 4000 रुपीज, रेट गिवन है, लीजिए 5% पर एनम, और आगे क्या कहता है, कहते हैं लीनियर ग्राफ बनाओ। किस किस के बीच में, ध्यान से सुनना, टाइम और अमाउंट, और भैया फर्स्ट 4 ईयर, तो 4 डब्बे हैं इसमें। लेकिन मुद्दे की बात है कि सर कैसे बनाएं, तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर अमाउंट की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। बिल्कुल, प्रिंसिपल 4000, रेट 5, टाइम देखिए 1 ईयर का निकाल लेता हूं मैं, या टाइम नहीं पता तो टाइमर लो भैया, ठीक रहने दो, और इसके नीचे 100 है। सर आप 4 ईयर का मतलब हर में 1 पुट कर लेंगे। पहले तो ये करके देख लिए सिंप्लीफाई क्या होता है। यहां पे इंटरेस्ट जो है ना वो आया 40 इंटू 5 करा तो 200 टी आ गया। अमाउंट निकालना है, अमाउंट याद आया आपको, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता था। प्रिंसिपल कितना है 4000, इंटरेस्ट कितना है 200, टी में आ गया। देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या आपको वो बता रहा हूं। अक्सर बच्चे कहते सर ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, डिफिकल्ट नहीं, मैंने एक लीनियर इक्वेशन बनाई है टी में और ए में। सर आपने ये क्यों बनाई, क्योंकि टाइम और अमाउंट में बनानी है। तो लीजिए भैया हमारी लीनियर इक्वेशन रेडी है। अब मुझे डब्बा बनाना है, डब्बे का मतलब है 1 ईयर 2 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए। तो ये लीजिए बॉक्स जो है बन के हमारा रेडी है, बस इसमें 3 डब्बे हैं। तो भैया 3 की बजाय इसमें एक डब्बा और बना देता हूं, और वो डब्बा मेरा लीजिए पेन से बनाता हूं। अब ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मेरा ए और टी है ना, ए अमाउंट है, टी टाइम है। तो टाइम मैंने लिया भैया यहां पे और अमाउंट लिया यहां पे। टाइम 1 ईयर है तो टी 1 पुट करना भैया। जब ये 1 पुट करते हैं ना तो 4000 प्लस में 200 इंटू 1, तो ये तो बन गया 4200। ये लो जी 4200 लिख दीजिए। अगर मैं टाइम टी पुट करता हूं तो ये टी की जगह पे 2 पुट करोगे तो भैया टी अगर 2 है तो ये जो अमाउंट है ये बन जाएगा 4000 प्लस में 200 इंटू 2, और ये बन जाएगा 4000 प्लस में 400, यानी कि 4400 बन गया। ये लीजिए भैया 4400 बन गया। अब अगर मैं सिमिलरली वे में अगर 3 पुट करता हूं तो यहां पे इसी इक्वेशन पे ध्यान दीजिए ना, हमारी जो मेन इक्वेशन है, अगर इसमें मैं 3 पुट कर देता हूं तो ये 600 बनेगा ना, 4000 प्लस 600 यानी कि 4600 बना।
अगर मैं इसकी जगह पे 4 पुट करता हूं तो 800 बन जाएगा, इसको 4000 में ऐड करना, 4000 में यानी कि 4800। हमें कहता है पहले 4 साल का निकालना है, रिलेशन निकाल दिया भैया 4 साल। फिर कहता है लीनियर ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा स्पेशल बनेगा, इसमें नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है। सर इसमें तो बनाओगे कैसे, आपने नोट करा, इसमें तो बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। इसमें तो बड़ा अच्छी चीज बताता हूं, देखिए टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये याद रखना। कुछ भी हो जाए, साइंस मैम ने भी बताया होगा, टीचर ने बताया होगा, टाइम। और वाई एक्सिस पे मैं अमाउंट ले रहा हूं, ठीक है। अब टाइम तो 1 2 3 4 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। लेकिन ये ध्यान दिया आपने, ये तो 4, आपको ने किंग सुना होगा, एक चैप्टर में किंग पढ़ाऊंगा, अगले वाले में। किंग का मतलब है नोट अप टू द मेजर। तो पहला डब्बा मैं सीधा ही ले लेता हूं यहां से 4200, ये किंग है। अगले वाला ले लिया मैंने 4400, नेक्स्ट ले लिया 40, यानी कि मैं गैप ले रहा हूं 202, ये मैंने नेक्स्ट लिया 4800, नेक्स्ट मेरा हो गया 5000 का। यहां स्केल में ध्यान में रखना, एक्स एक्सिस का जो स्केल है ना 1 यूनिट, वो भैया 1 ईयर होगा, और वाई एक्सिस का स्केल होगा ना 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब तो 1 डब्बा, वो आपको लिखना है ₹200, 200 का गैप है ना। तो देखिए पहला काम करते हैं, ये ग्राफ बात कर रहे हैं, कर क्या रहा है, कहता है कि भैया 1 पे 4200, ये 4200 है, ये 1 है, ये लीजिए, क्लियर। फिर 2 पे कह रहा है 4400, ये लीजिए भैया 2 है, और ये है 4400, ये लीजिए। फिर 3 पे कह रहा है 4600, ये 3 हो गया, ये 4600 हो गया, और ये हो गया 4 का 4800, तो 4 का 4800 हो गया। इन चारों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, मेरा आंसर बन जाएगा। तो लीजिए मैंने इन चारों को लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर दिया, और विद दिस मेरा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया था ग्राफ बनाना, मेरा मानना आप एग्री करोगे ग्राफ है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन का ये इक्वेशन क्या बनी, 4000 प्लस में 200t, ये लीनियर इक्वेशन है। तो दिस ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट एंड टाइम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।